Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. First of all, thanks a lot for supporting the platform because I'm coming after such a long time, but still all of you are there. Those who matter, those who are connected with me, they are slowly but surely getting back to the platform, and that's the big news because if you are not there, then I feel discouraged. And the best part is that despite a gap of almost about 4.5 months, all of you have continued to support the platform. And as people are getting to know that I'm back, more and more people are coming and joining the platform either during the live sessions or to watch the videos later on. So thanks a lot for that. Let's get back to the topic of the day. There's a lot of focus on the chat, which is doing the rounds or is in circulation. This chat talks about the conversation between Shah Rukh Khan, the King Khan, the so-called superstar of Bollywood, and Mr. Sameer Wankhede, the former zonal director of Mumbai NCB. And now this chat is said to be extremely important because it speaks a lot. If you have gone through the reports in media or television channels or even on certain social media platforms, a lot is being said that how emotional was Shah Rukh Khan when he was talking to Sameer Wankhede, or how affected was Shah Rukh Khan while he was making all the requests during the chat that he had with Sameer Wankhede. But if you carefully look at the chat, because I am not bothered about the emotional aspect of it, I am only interested in whether the charge against Sameer Wankhede, which is of extortion amounting to almost about 25 crore rupees, whether that chat holds good, whether that allegation holds good or not. And in that context, this chat becomes extremely important because it will reveal whether whatever allegation or whatever charges are being made against Sameer Wankhede, one, whether they are true, or second, is Mr. Shah Rukh Khan actually a victim of circumstances or he is playing the emotional card to corner Mr. Sameer Wankhede. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैट को इस नजर से देखना कि ये चैट का उस एक्सटॉर्शन से क्या लेना देना है. तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाहरुख खान कितने इमोशनल थे या वो क्या कह रहे थे. मैं बताऊंगा, पूरा चैट बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या किस इमोशन के साथ उन्होंने लिखा और क्या कुछ लिखा है. लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट को व्यू करूंगा क्रिटिकली विद अ सिंपल पॉइंट, बिकॉज ये चैट कहां पर आया है. ये चैट है उस पिटीशन का हिस्सा जो मिस्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया. सो यू ऑल नो दैट ही अप्रोच्ड द दिल्ली हाईकोर्ट on Monday, Tuesday, and he got a relief till next Monday to go and approach Bombay High Court or appropriate court because the jurisdiction is Bombay and jurisdiction is not Delhi. So he had been given time till about Monday to go and approach Bombay High Court and seek a relief. So he's filed a petition, and in that petition, he has attached this entire conversation that he had with Mr. Shah Rukh Khan as an annexure. और इसीलिए ये चैट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अदरवाइज इस चैट का और कोई रिलेवेंस नहीं है. ये चैट कभी सामने आया भी नहीं था कि ऐसा कि मिस्टर शाहरुख खान ने बाकायदा मिस्टर समीर वानखेड़े से बात की थी. इस बात का जिक्र मिस्टर शाहरुख खान ने कभी नहीं किया, न उनके लॉयर्स ने किया और न मिस्टर समीर वानखेड़े ने किया. लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है और जाहिर तौर पे मिस्टर समीर वानखेड़े इज बॉदर्ड अबाउट हिज रेपुटेशन. ही इज ब्रिंगिंग दिस चैट ऑन ऑफिशियली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्ट. सो बिकॉज इट इज ऑन रिकॉर्ड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट और ये चैट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अगर इस चैट को आप देखेंगे तो इस पूरे एक्सटॉर्शन थ्योरी के लूप होल्स नजर आ जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एंड व्हाई द एंटायर एक्सटॉर्शन एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर समीर वानखेड़े इज ऑल फॉल्स एंड दैट्स व्हाट आई विल डेमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द शो. मैं आपको बताऊंगा दो अलग अलग चीजें और उसके बाद आपके सामने साफ हो जाएगा. इसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, किसी फिटनेस की जरूरत नहीं है. ये चैट और सर्कमस्टांसेस अगर दोनों को एक साथ देख लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कहानी एनसीबी की एसआईटी ने क्या बनाई है. क्यों बनाई है आई डू नॉट नो, बट क्या बनाई है ये तो सिर्फ अब एनसीबी की एसआईटी जानती है.
एलिगेशन क्या है? एलिगेशन ये है कि मिस्टर समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपीस he tried to extort from Mr. शाहरुख खान. That's the basic allegation. 25 करोड़ रुपए उनसे वसूली करने की कोशिश की थी उस वक्त के एनसीबी के बॉम्बे जोनल डायरेक्टर मिस्टर समीर वानखेड़े ने, और ये अपने आप में बहुत सीरियस एलिगेशन है क्योंकि ये क्लियरली अमाउंट करता है करप्शन की तरफ. सो एक आदमी जो आर्यन खान ऑपरेशन को हेड कर रहा था, एलिगेशन ये है कि उस पूरे ऑपरेशन को यानी आर्यन खान को अरेस्ट ही इसलिए किया गया था ताकि मिस्टर समीर वानखेड़े पैसे बना सकें. और इतना सीरियस एलिगेशन है कि किसी आदमी की नौकरी चली जाएगी, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है. तो ये कोई जोक की बात नहीं कि कोई भी कुछ आएगा और कुछ भी कह जाएगा. तो क्या वाकई में ये इतना स्ट्रॉन्ग एलिगेशन विदाउट बेसिस है या इसके पीछे बेसिस है? आई डू नॉट नो, बट आई हैव समथिंग ऑन रिकॉर्ड हियर. वो चैट, उस चैट को बहुत सारे एंगल से आपने सुन लिया होगा, जैसे मैंने बताया. अब उस एंगल से सुनिए जिस एंगल से मैं बता रहा हूं, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि वो इमोशनल कार्ड जिसका जिक्र हो रहा है पूरे मीडिया में, जो शाहरुख खान के बारे में कहा जा रहा है, इज एन एक्सट्रीमली, ही वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉट एट दैट टाइम, बहुत अफेक्टेड हो गए थे, बहुत इमोशनल प्ली कर रहा था, किया था उन्होंने. मिस्टर समीर वानखेड़े ने उनके प्ली को हटा दिया जबकि वो बेग कर रहे थे, यानी भीख मांग रहे थे. फिर भी मिस्टर समीर वानखेड़े ने नहीं सुना, और यही नैरेटिव लगभग टेलीविजन मीडिया पे भी चल रहा है और सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म या बहुत सारी जगहों पे भी चल रहा है. अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या वो स्टैंड सही है या जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सही है. Why am I saying that this entire allegation of extortion against Mr. Sameer Wankhede appears to be a pack of lies? ये झूठ का एक पुलिंदा है. ये पुलिंदा खड़ा किया गया है समीर वानखेड़े के रेपुटेशन खत्म करने के लिए, एनसीबी के रेपुटेशन खत्म करने के लिए. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट, ये सारा इसलिए खड़ा किया गया ताकि पूरा का पूरा प्रेशर जो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड में पड़ा, वो प्रेशर खत्म हो जाए. आप सब लोग शांत हो जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं, सुशांत सिंह राजपूत को भी भूल जाएं और बॉलीवुड को भी विलेन मानने से इंकार कर दें. क्यों? बॉलीवुड पोर्ट्रे कर रहा है कि हम विलेन नहीं है, विलेन एनसीबी है. एक एजेंसी जो इकलौती एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रही थी, उसके रेपुटेशन को खत्म कर दो, समीर वानखेड़े को टारगेट करो और पूरा ऑपरेशन जो चल रहा है ड्रग्स का बॉलीवुड के खिलाफ उसको रोक दो. ये पूरा अटेम्प्ट था, और इस अटेम्प्ट में कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि पिछले 1.5 साल में जब से एलिगेशन समीर वानखेड़े के ऊपर लगे, बॉलीवुड ठंडा हो गया, कूल हो गया, सारी चीजें बंद हो गई. एनीवे, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन हियर. देयर इज lots and lots to talk about because ये सारा कुछ जो लग रहा है, it's part of a political film world plus crime plus official agency plus departments. ये सारा खेल एक साथ मिलकर ये कॉकटेल सामने आया है जिसका नाम है आर्यन खान ड्रग्स केस. दो चीजें हैं. पहली चीज जो पिक्चर में इस वक्त आपके स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, दो पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे इस वक्त प्रॉम्प्टेड है, और भी पिक्चर्स आएंगे. एक ये चैट है जो मिस्टर शाहरुख खान और मिस्टर समीर वानखेड़े के बीच हुआ है, जिसको लेकर मैं बात करूंगा. दूसरी तस्वीर है, ये है प्रभाकर सेल की, वो विटनेस जिसको लेकर मैंने बाकायदा बहुत डिटेल में बात किया, और वीडियो आप लोग पसंद भी कर रहे हैं. वो वीडियो अभी इस वक्त ऑन एयर है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं. मैंने उसका लिंक फेसबुक पे भी शेयर किया. तो प्रभाकर सेल बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस है एनसीबी का जो हॉस्टाइल हो गया था, और उसी शख्स ने एलिगेशन लगाया है दैट मिस्टर समीर वानखेड़े वाज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम शाहरुख खान. तो उस एक्सटॉर्शन कंप्लेन की बुनियाद जो है वो प्रभाकर सेल है. प्रभाकर सेल की क्या कहानी है, कहां है प्रभाकर सेल, आज जिंदा है नहीं है, क्या कहा प्रभाकर सेल ने, सब कुछ उस वीडियो में है. उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा. लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको देखना जरूरी है कि एलिगेशन को समझने के लिए कि एलिगेशन क्या है और कितनी कॉन्क्रीट है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट. एनसीबी एसआईटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को, और जिसके बेसिस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया मिस्टर समीर वानखेड़े के केस में, वो क्या कहता है
पहले उस पर नजर डालते हैं, then I'll come to chat because both are directly connected with my show, if not anything else, with my show and the conclusion that I'm making. प्रभाकर सेल, जिसका मैंने जिक्र किया, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैं दोबारा प्रॉम्प्ट कर देता हूं, प्रभाकर सेल के बारे में कहा जा रहा है कि ये शख्स ग्रीन गेट क्रूज टर्मिनल बॉम्बे, जहां पे ये जो क्रूज था बॉम्बे से गोवा जाने वाला, जिसमें मिस्टर आर्यन खान जा रहे थे और जहां कहा गया कि आर्यन खान वाज कैरिंग ड्रग्स ऑन हिम, उस क्रूज टर्मिनल पे ये प्रभाकर सेल शख्स अक्टूबर 2, 2021 को केपी गोसावी, जो दूसरा इंडिपेंडेंट विटनेस था जिसके बारे में हमने बात किया, उसके कहने पे 12 बजे से खड़ा। दूसरा पॉइंट, प्रभाकर सेल तब भी वहां था जब आर्यन खान क्रूज टर्मिनल पहुंचे। When Aryan Khan reached cruise terminal, this man Prabhakar Sel was present there. Acting on a specific tip-off, as per NCB, they spotted Mr. Aryan Khan. He was identified by a few independent witnesses, including Prabhakar Sel and Gosavi and others. And he was stopped. He was intervened. He was told to stop. And a check was carried out on him and then subsequently on the cruise. And certain drugs were recovered from him and his friends. So ये पूरा ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब आर्यन खान वहां पहुंचे और ये गारंटी हो गई कि आर्यन खान ही हैं, और आर्यन खान को रोका गया, उनकी सर्च की गई। उसके बाद क्रूज टर्मिनल में जो उन्होंने अपना बुक किया था रूम, उस रूम को सर्च किया गया और उसमें से ड्रग्स मिले, उनके फ्रेंड्स के साथ पास से भी और इनके पास से भी। दैट्स हाउ द एंटायर केस स्टार्टेड। और ये सब कुछ कोई इंटेलिजेंस इनपुट पे हो रहा था। 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एनसीबी ऑफिशियल्स आर्यन खान को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचे थे। उस वक्त ये दोनों शख्स प्रेजेंट थे, केपी गोसावी और प्रभाकर सेल। बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट एट द एनसीबी ऑफिस। दे बिकेम witness also as per NCB. Mr. Sameer Wankhede, both of them turned independent witness and signed on paper saying that this is what was recovered from Aryan Khan, और उनके जो दोस्त थे उनसे क्या कुछ मिला और क्या कुछ हुआ। प्रभाकर सेल ने ये कहा, लगभग 20 दिन तक चुप रहने के बाद प्रभाकर सेल, जैसे मैंने आपको अपने दूसरे वीडियोस में बताया, डिटेल देते वक्त क्या हुआ था, प्रभाकर सेल ने 22 दिन बाद 25 अक्टूबर को मीडिया को, पुलिस को बताया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एफिडेविट भी दिया दैट ही हैड हर्ड केपी गोसावी टॉकिंग अबाउट एन एक्सटॉर्शन बिड। अब मैं ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसका चैट से डायरेक्ट लिंक है। आई विल टेल यू व्हाई। तो उसने ही बोला कि केपी गोसावी को उसने एक सैम्विल डिसूजा से बात करते हुए सुना था और कहा, उन दोनों के बीच बात जो हो रही थी वो ये कि 25 करोड़ का डिमांड करना है, 18 करोड़ पे क्लोज करना है और उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना। सो द डिस्कशन बिटवीन सैम्विल डिसूजा और सेनविल डिसूजा एंड मिस्टर केपी गोसावी was heard by Prabhakar Sel was that there will be a demand of 25 crore rupee as extortion amount to release Mr. Aryan Khan before arrest. अरेस्ट होने से पहले आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे। एंड देन दे डिसाइडेड कि 25 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए हम सील करेंगे, उसमें से 8 करोड़ क्लेम किया गया कि वो जाएगा समीर वानखेड़े को। इस प्रभाकर सेल ने एक और मीटिंग के बारे में जिक्र किया जो बहुत क्रिटिकल हो जाता है हमारे आज के शो से और इस चैट से, और वो मीटिंग था पूजा डडलानी का केपी गोसावी और सेनविल डिसूजा के साथ। ये लोअर परेल में ये मीटिंग हुई थी। दिस इज अ प्लेस कॉल्ड लोअर परेल इन बॉम्बे एंड दैट्स द प्लेस वेयर केपी गोसावी एंड सेनविल डिसूजा मेट शाहरुख खान पर्सनल सेक्रेटरी पूजा डडलानी आफ्टर मिडनाइट ऑन 2nd of October. Please do remember this date. 2 तारीख की रात 12 बजे के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, गिरफ्तार नहीं डिटेन किया गया, अरेस्ट तो अगले दिन शो किया गया। ही वॉज डिटेन अराउंड 12:30 और ये जो मीटिंग है लगभग 2:30 बजे पूजा डडलानी, केपी गोसावी और सेनविल डिसूजा के बीच हो रही थी, जहां पर एज द पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ केपी गोसावी प्रभाकर सेल भी मौजूद था
भले ही वो उन लोगों की बात सुन नहीं रहा था क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसने इन लोगों को मिलते हुए 2:30 बजे 3 बजे देखा था और उसका ये क्लेम था कि ये लोग मिले थे एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करने, 25 करोड़ रुपए का डील करने। अब इसी प्रभाकर सेल की माने, इफ यू गो बाय व्हाट प्रभाकर सेल इज सेइंग, द डील वाज स्ट्रक, यानी वो डील हो गई थी, 25 करोड़ की डिमांड की गई, 18 करोड़ में वो डील फाइनलाइज हो गई और 8 करोड़ मिस्टर समीर वानखेड़े को दिया जाएगा। ये बात भी अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल, ये बात केपी गोसावी और सेनविल डिसूजा ने पूजा डडलानी को बोली कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिया जाएगा इस 18 करोड़ में से। और इसी शख्स के मुताबिक आज ये शख्स जिंदा नहीं है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो विच इज कंप्लीटली ऑन हिम, आपको सारी डिटेल मिलेंगी। प्रभाकर सेल इज नॉट अलाइव बिकॉज ही डाइड ऑन द 2nd of April 2022 last year after a massive heart attack, sudden and massive heart attack, so he died। बट उसने कहा कि ये जो डील थी, ये डील स्ट्रक हो गई थी, ये डील हो गई थी उन लोगों के बीच बातचीत के बाद, और उसमें से 50 लाख रुपए पूजा डडलानी ने एज एन एडवांस पे भी किया, जिसमें से कुछ पैसा, अब ये बात गोसावी ने बोली है, सेनविल डिसूजा ने बोली है या प्रभाकर सेल ने बोली है, क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा वापस कर दिया गया। क्यों किया गया, नो वन नोज, बट अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रभाकर सेल के मुताबिक ये डील हो गया था। ये डील क्या था, 25 करोड़ रुपए डिमांड किए गए एक्सटॉर्शन के, जो आर्यन खान को छोड़ने के लिए थे अरेस्ट से पहले, डिटेंशन के ठीक बाद उसको छोड़ने के 25 करोड़ रुपए मांगे गए, 18 करोड़ में डील हुआ, 50 लाख रुपए एडवांस हो गया। ये 18 करोड़ में से 8 लाख मिस्टर समीर वानखेड़े, दैट्स द एलिगेशन। इस मीटिंग का फुटेज भी रिकॉर्ड हो गया, सीसीटीवी फुटेज भी मुंबई पुलिस ने निकाल लिया और कंफर्म कर दिया कि हाँ इनकी मुलाकात हुई थी। ओके, अब ये मुलाकात हुई थी, प्रिजम्पशन ये है कि ये एक्सटॉर्शन मनी के लिए हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि एक्चुअली क्या हुआ था। लेकिन प्रभाकर सेल के क्लेम के मुताबिक ये डील स्ट्रक हो गया, 50 लाख रुपए दे दिया गया, और कोई शक नहीं है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए बाकायदा एक्सटॉर्शन मनी डिमांड की गई थी। That Prabhakar, according to Prabhakar Sale, the second independent witness who suddenly appeared after 22 days, while there were a lot of political discussion happening, बहुत सारा political questions raise किया जा रहा था मिस्टर समीर वानखेड़े के ऊपर, मिस्टर नवाब मलिक और बाकी लोग सवाल उठाए जा रहे थे समीर वानखेड़े पर कि समीर वानखेड़े इज नॉट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और उसके बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई, और उस कंट्रोवर्सी के बीच प्रभाकर सेल सामने आया, उसने क्लेम कर दिया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की गई थी, जिसको पॉलिटिकली नवाब मलिक ने बाद में रेज कर दिया। अब ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन सारी बातों का जिक्र और इसका रेफरेंस और इसका कनेक्शन उस चैट से है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, और इस बात से भी है कि क्यों मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाया गया पूरा एलिगेशन अकॉर्डिंग टू मी इज अ पैक ऑफ लाई, झूठ है, पूरा झूठ का पुलिंदा है, एंड आई विल प्रूव दैट। सो इसके लिए ये चीजें बताना जरूरी था कि प्रभाकर सेल वो विटनेस है जिसके मुताबिक ये डील हो गई और आर्यन खान को छोड़ने के लिए 18 करोड़ रुपए मांग लिए गए और तैयारी भी हो गई थी। Now let's come to the chat, the all important chat between Sameer Wankhede and Mr. Shahrukh Khan, द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा रिपीट करना कि ये चैट बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट के टेबल पे है। बॉम्बे हाईकोर्ट मंडे को मिस्टर समीर वानखेड़े के पिटीशन को सुनने वाली है, बिकॉज मिस्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि एलिगेशन मेरे अगेंस्ट में गलत है, इट्स अ विच हंट अगेंस्ट मी, आई एम बीइंग फ्रेम्ड, मुझे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज आई एम रनिंग अ एंटी करप्शन एंटी ड्रग्स ऑपरेशन, सो पीपल आर ट्राइंग टू शट my mouth and they are going after me because they want to target me and they want to fix me। मुझे काम करने नहीं दिया जाए,
मैं कुछ नहीं करूं, मैं कोई ऑपरेशन नहीं चलाऊं, इसकी पूरी कोशिश हो रही है और कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो मुझसे बदला ले रहा है, बदले की भावना से काम कर रहा है और मुझे ट्रैप किया जा रहा है, पूरी चीजों फंसाया जा रहा है। ये मिस्टर समीर वानखेड़े का एलिगेशन जो उन्होंने पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया है और उसमें उन्होंने इस एलिगेशन को काउंटर करने के लिए कि मैंने कोई एक्सटॉर्शन अमाउंट डिमांड नहीं किया था, जबकि प्रभाकर सेल ने बाकायदा कहा कि हाँ एक्सटॉर्शन डिमांड किया गया, 18 करोड़ 25 करोड़ जो भी, मिस्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक नहीं किया गया। ऐसा क्यों और ये कैसे प्रूव होता है? क्योंकि कोई एक आदमी सही है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑल इंपॉर्टेंट चैट। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सुना होगा, दोबारा सुनिए। Just give me 10 seconds. I have to just retrieve one report. Yeah. So let's go through the chat. ये चैट है अक्टूबर 3। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया मीटिंग कब हुई पूजा डडलानी के साथ, 2:30 बजे रात में 3 तारीख को, 2 तारीख के बाद रात में 3 तारीख को 2:30 बजे सुबह ये मीटिंग डडलानी की, पूजा डडलानी की इन दोनों के साथ हुई। अब मिस्टर शाहरुख खान ने एक मैसेज भेजा, पहला मैसेज समीर वानखेड़े को। अब एलिगेशन है एक्सटॉर्शन का, मीटिंग है पूजा डडलानी की 2:30 बजे की और स्टेटमेंट है प्रभाकर सेल का। सो ये अक्टूबर 3, 2021 and the time is around 10:37 AM. The time is not very clear in the chat because chat बहुत हेजी है, लेकिन it appears कि 10:37 AM 3 तारीख को पूजा डडलानी 2:30 बजे रात में मिली थी और 10:30 बजे सुबह शाहरुख खान ने पहला मैसेज मिस्टर समीर वानखेड़े को भेजा। उसमें क्या लिखा? समीर साहब, may I speak with you for a minute please? Regards Shahrukh Khan. I will repeat in Hindi later on. First, let me go through the English chat. I know this is officially inappropriate. This is Mr. Shahrukh Khan writing on WhatsApp number of Mr. Sameer Wankhede. I know this is officially inappropriate and maybe outright wrong. But once as a father, if I can speak with you, please, love SRK. 10:37 पे 10:37 AM on the 3rd of October. वो डील कितने बजे हुई थी? 2:30 बजे तो डील हो चुकी थी, एडवांस मिल चुका था, लेकिन शाहरुख खान इनसे बात कब कर रहे हैं? 10:30 बजे सुबह 3 तारीख। टाइम में कोई कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट इट इज ऑब्वियसली आफ्टर हिज डिटेंशन। October 3, 5:34 PM, Mr. Sameer Wankhede responds, please call. जो रिक्वेस्ट उन्होंने कहा that give me 1 minute, can I speak to you for 1 minute? Sameer Wankhede said please call. It is believed कि शाहरुख खान made a call to Sameer Wankhede after that, और इनके बीच कोई बात हुई। अब वो क्या बात हुई ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मैसेजेस शाहरुख खान ने भेजे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर था, अगर शाहरुख खान ने 1 मिनट मांगा और समीर वानखेड़े ने दे दिया, पूजा डडलानी ने मुलाकात कर ली, डील हो गई, तो लॉजिकली बात डील के बारे में होनी चाहिए थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पैसे आपको पहुंच जाएंगे वगैरह वगैरह, और अब उसको रिलीज कर दीजिए। लेकिन क्या बात हुई ये तो कोई नहीं जानता, बिकॉज उन लोगों फोन पे बात हुई थी। लेकिन जो अगले चैट्स हैं शाहरुख खान के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ऐसा कोई डील नहीं हुई, ऐसे कोई डिमांड नहीं हुई, इस तरह से झूठ है। क्यों? क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान आगे क्या लिख रहे हैं? मिस्टर शाहरुख खान on October 4, not October 3, October 4, time is not clear, so I am not citing the time. Can't thank you. ये बातचीत के बाद की बात है, जब इन दोनों की बात हो गई, when both of them spoke on the request of Shahrukh Khan, Sameer Wankhede agreed. Initially did not respond, but later on he agreed. Okay, call. So after that they spoke, and this is a chat after that conversation. Can't thank you enough. This is Shahrukh Khan to Mr. Sameer Wankhede on 4th of October. Can't thank you enough for all the thoughts and personal insights you gave to me about my own. I will make sure that he turns out to be someone that you and I are both proud of. You means Aryan Khan. This incident will prove to be a turning point in his life, I promise. In a good way. This country needs honest. This is Shahrukh Khan telling Mr. Sameer Wankhede.
This country needs honest and hardworking young people to take it forward. You and I have done our parts. The next generation has to follow, and it's in our hand to mold them for the future. Thank you once again for your kindness and support. Love, SRK. Next message. God bless you. I have to come personally. ये अगला मैसेज है जिसमें कहते हैं मिस्टर शाहरुख खान गॉड ब्लेस यू. थर्ड मैसेज I have उस सेम सीरीज में I have to come personally whenever you say and give you a hug to you. Let me please know whenever it is convenient for you. Really, I have always had the highest regard for your uprightness. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं. ये कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सोशल मीडिया, कोई नहीं बोल रहा है. सब इमोशनल स्टोरी चला रहे हैं. अरे क्या लिखा है पहले उसको तो पढ़ो ठीक से. So Mr. Shahrukh Khan writes, really I have always had the highest regard for your uprightness and now it has increased many folds. Big respect. Love, SRK. ये कब का है? ये चैट 4 तारीख को है. 4 अक्टूबर 2021. अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल वो डील तो 3 तारीख को 2:30 बजे रात में ही हो गई थी. यानी 2 तारीख की देर रात और 3 तारीख की सुबह 2:30 बजे हो गई थी. तो फिर शाहरुख खान को ये बोलने की क्या जरूरत थी? अकॉर्डिंग टू दैट डील मिस्टर समीर वानखेड़े इज अ करप्ट मैन. यही तो बोला एनसीबी के एसआईटी ने कि उसमें एक्सटॉर्शन हुआ था एंड मिस्टर समीर वानखेड़े इज करप्ट मैन. और भी बहुत कुछ बोला है, मैं बताऊंगा आपको. लेकिन लेट्स फोकस ऑन द चैट. लेकिन ये चैट क्या बोलता है? ये चैट में मिस्टर शाहरुख खान लिख रहे हैं, यू आई हैव अ हाईएस्ट रिगार्ड फॉर योर अपराइटनेस एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड. मुझे आपके ईमानदारी पे गर्व है और सबसे ज्यादा मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं इसके लिए. और अब तो ये रिस्पेक्ट और बढ़ गया है. बिग रिस्पेक्ट. मुझे मालूम था आप बहुत ज्यादा कमिटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और अब मेरे को लगता है जो मेरा रिस्पेक्ट था और ज्यादा बढ़ गया आपसे बात करने के बाद. तो मिस्टर शाहरुख खान के मुताबिक 4 अक्टूबर मिस्टर समीर वानखेड़े वाज एन ऑनेस्ट मैन. अगर डील हो गई थी पैसों की तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए था. मिस्टर शाहरुख खान को ये मैसेज नहीं करना चाहिए था, कुछ और मैसेज करना चाहिए था. इसीलिए इस मैसेज को मिस्टर समीर वानखेड़े ने कोर्ट के सामने रखा है सो दैट इट कैन बी प्रूव दैट इज ऑनेस्ट. नेक्स्ट, on October 4 again at 2:53 p.m. Mr. Wankhede responded, sure deal, will catch up, let this get over soon. मैं पूरे चैट को हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा, so don't worry about it. मैं हिंदी में बोल दूंगा, उसका ट्रांसलेशन भी है. जो उन्होंने बोला था, जो कुछ भी शाहरुख खान ने बोला उसके रिस्पॉन्स में मिस्टर वानखेड़े wrote, sure deal, will catch up, let this get over soon, because he wanted to give him a hug. Mr. Shahrukh Khan wanted to give a hug to Mr. हग मतलब गले लगाना चाहते थे मिस्टर समीर वानखेड़े को, and he wanted to meet him at a convenient time. So he said, surely we'll meet, but let this get over. So SRK responded saying, yes, please help me in making it soon. Thanks. So Mr. Wankhede wrote, sure deal, will catch up, let this get over soon. So Mr. Shahrukh Khan said, yes, please help me in making it soon. Thanks. कहीं पर आपको कि पैसे का की बू भी आ रही है. Is there any indication of money anywhere? But anyway, let's move. Go ahead. This chat is quite elaborate. October 7th, 2021, 5:29 a.m. सुबह 5:30 बजे. Shahrukh Khan is writing to Mr. Sameer Wankhede again. I am going by what you said. जो फोन पे बात हुई थी. I am going by what you said. I hope you feel my son has had the lesson you felt he should have had. And henceforth he is able to build his life to be an upright, hardworking young man towards a bright future. So Mr. Shahrukh Khan क्या बोल रहे हैं? 5:30 बजे सुबह 7 अक्टूबर को अगर डील हो गई थी तो आर्यन खान को 3 तारीख को घर चले जाना चाहिए था. लेकिन आर्यन खान घर नहीं गए थे. आर्यन खान पुलिस कस्टडी में थे, एनसीबी की कस्टडी में थे. और 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे मिस्टर शाहरुख खान मिस्टर समीर वानखेड़े को मैसेज कर रहे थे कि मैं आपकी बात पे जा रहा हूं. जो कुछ भी आपने कहा है, क्या कहा है वो बताऊंगा हिंदी में.
मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे बेटे को जो सिखाया है उसके बाद वो अब सुधरेगा और अपना लाइफ एक हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाले मेहनतकश इंसान के तौर पे बनाएगा और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, अच्छा होगा. थैंक फॉर ऑल योर काइंडनेस एंड केयर. सो मिस्टर शाहरुख खान इज टेलिंग मिस्टर समीर वानखेड़े, थैंक यू. आपने जो उसका केयर किया और जो आपने उसको काइंड वे में हैंडल किया, जो अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसके लिए शुक्रिया. सो मिस्टर समीर वानखेड़े वाज ट्रीटिंग आर्यन खान वेल, अच्छे से डील कर रहे थे और उनका अच्छा केयर किया जा रहा था और इसी के शुक्रिया अदा शाहरुख खान कर रहे हैं मिस्टर समीर वानखेड़े. उसके बाद उन्होंने विद इन ब्रैकेट लिखा, सॉरी इट्स लेट नाइट मैसेज. 5:30 बजे एक्टर्स के लिए लेट नाइट होता है, हमारे आपके लिए सुबह हो जाए. एंड आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू. वाकई 5:30 बजे सुबह अगर आप मैसेज कर रहे हैं, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, नॉर्मल बात है, वही तो टाइम होता है मैसेज करने का. बट आई वॉज अवेक नेचुरली एज अ फादर, आई एम अवेक. लव SRK. ऑब्वियसली हिज सन वॉज अरेस्टेड, तो नींद तो आएगी नहीं, ये बात तो समझ में आती है. लेकिन एक्टर्स तो वैसे भी रात में नहीं सोते हैं, वो दिन में सोते हैं क्योंकि रात में शूट करते हैं. सो उनका शेड्यूल है, बिकॉज ऑफ दैट मे बी ही वाज अवेक. बट उनके मुताबिक क्योंकि मेरा बेटा आपके कस्टडी में, इसलिए मैं अभी जगा हुआ. मिस्टर वानखेड़े ने अक्टूबर 7 को रिस्पॉन्ड किया है. अब ये टाइम नहीं पता है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड किया है मिस्टर वानखेड़े. उन्होंने कहा है, शाहरुख ही हैज बीन अ गुड किड. ही मींस Aryan Khan. So Mr. Wankhede is writing to Shahrukh Khan. Shahrukh, he has been a good kid all the while and hope he will for sure now be reformed. Also enough counsel by me. Hard days will be over soon. तो मिस्टर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान को लिखा कि वो अच्छा बच्चा रहा है अब तक, अब वो इसके बाद वो रिफॉर्म हो जाएगा, सुधर जाएगा. मैंने खुद काफी उसको समझाया है. मुश्किल दिन है लेकिन जल्द खत्म हो जाएंगे. ये उन्होंने उसका जवाब दिया जो शाहरुख खान ने लिखा. उसके बाद शाहरुख खान ने क्या लिखा, 1 मिनट. मिस्टर शाहरुख खान ने रिक्वेस्ट किया उसके बाद एक और, इफ इन एनी वे, ये चैट आपने जो सुना है वो सिर्फ वो वाला पोर्शन है जहां मिस्टर शाहरुख खान ने बोला है कि आई बेग यू कि आप उसको छोड़ दीजिए. इसको इमोशनल क्वेश्चन देकर सबके सामने ला दिया गया, लेकिन जो दरअसल चैट है वो किसी ने नहीं बताया. उसमें शाहरुख खान आगे बोलते हैं, सेम अक्टूबर, दिस इज अक्टूबर 7th 2 p.m. 2:02 p.m. If in any way, without losing your integrity as an officer of law, you can help with whatever manner possible, please. I will always be indebted. I don't know the technicalities, but if the department in charge feels all is okay and to your satisfaction, if then your authority, ये मैटर, ये तब लिखा उन्होंने जब ये मैटर कोर्ट में था, बेल एप्लीकेशन सुनी जा रही थी मिस्टर आर्यन खान की, तब शाहरुख खान ने ये मैसेज मिस्टर समीर वानखेड़े को कहा कि आप इंटरवीन करो और ये लिख के दो. क्या लिख के दो, इफ देन योर अथॉरिटी फर्निशेस अ शॉर्ट रिप्लाई with whatever conditions your team may have, I promise you whatever cooperation you would need from him, that is Aryan Khan, will be done to the best of his abilities. Just please consider this request favorably. It will be a huge favor because the family just wants him home and not get stamped with having been a convict in a notorious prison. It will really help with his future, and that's why I am making this beyond reasonable request as a father. I hope you consider it, please, for his sake. So Mr. Shahrukh Khan उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऑफिशियल पोजीशन में हैं और अपनी ऑफिशियल पोजीशन को बगैर आउट ऑफ द वे जाने के आप जो कुछ भी मुझे हेल्प कर सकते हैं प्लीज कीजिए. किसी तरह उसको घर भेजिए क्योंकि मेरे लिए उसका घर आना जरूरी है. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जो भी आप कंडीशंस लगाएंगे वो उसको फुलफिल करेगा. और मैं ये रिक्वेस्ट एज अ फादर कर रहा हूं. आई होप यू विल कंसिडर इट फॉर हिज सेक. आप इसको मानेंगे उसकी भलाई के लिए, ऐसी मुझे उम्मीद है. ये मिस्टर शाहरुख खान लिख रहे हैं. कहां पर ये था, 7 अक्टूबर की बात हो रही है.
जिसने पैसे दे दिए हों उसका बेटा तो घर में होना चाहिए था। तो कौन सा पैसा, किधर पैसा? ये तो लगातार मिस्टर शाहरुख खान बोले जा रहे हैं आप इंटरवीन करो, आप इंटरवीन करो, आप इंटरवीन करो। ये चैट यहां खत्म नहीं होता है। थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग, लव SRK। उसके बाद मिस्टर समीर वानखेड़े ने फिर रिस्पॉन्ड किया, डियर शाहरुख, आई एम्पैथाइज यू एज अ फादर, थिंग्स विल बी फाइन। मिस्टर सिर्फ 2 लाइन का मैसेज डाला कि शाहरुख, मैं एज अ फादर, बाप होने के नाते मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं, चीजें जल्दी सुधर जाएंगी। मिस्टर समीर वानखेड़े ने लिखा। अब उन्होंने लिखा नहीं लिखा इस पर भी क्वेश्चन उठ गया है, बट उसका भी मैं जवाब दूंगा। उसके बाद मिस्टर शाहरुख खान ने जवाब दिया, गॉड ब्लेस यू मैन, लव SRK। तो क्या इसके बाद आर्यन खान छूट गए? यानी मिस्टर शाहरुख खान जानते थे कि मिस्टर समीर वानखेड़े ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। द वर्ड अपराइट इज अगेन मेंशन्ड हियर, that when we speak I will tell you what I have done in my capacity not to hurt your drive to be upright। आपकी जो कोशिश है ऑनेस्ट रहने की, उसको हर्ट करने की मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की। सो मिस्टर शाहरुख खान कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े ऑनेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सटॉर्शन क्या है? वो 25 करोड़ किसके लिए लिया जा रहा था? देयर इज अ क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन, जो एनसीबी की एसआईटी बोल रही है और जो मिस्टर शाहरुख खान लिख रहे हैं। एक ईमानदार ऑफिसर को आप लोग बदनाम कर रहे हो और ये पूरा मीडिया चुप है, कोई नहीं पढ़ता इस चैट को, कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर टंग रहा है, टंग जाने दो, वो दौड़ रहा है इस कोर्ट से उस कोर्ट। कोई ईमानदार ऑफिसर काम नहीं करेगा ऐसे। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। आप अगर किसी ऑफिसर को भेज रहे हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो उसको काम करने दीजिए, उसको स्ट्रेंथ दीजिए। इस तरह से परेशान मत कीजिए कि एक ऑफिसर को आप भेजते हो, उसके बाद वो एक ऑपरेशन करता है जो ऑनेस्टली करता है, उसके बाद आप एक एलिगेशन सामने आता है फॉर पॉलिटिकल रीजन जो क्लियर है, उस आपका डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में विजिलेंस इंक्वायरी बिठा देता है, उसको वहां से शंट आउट कर देता है, फिर उसके खिलाफ केस बनाता है। क्या करप्शन का? कहां है करप्शन? दिखना चाहिए ना। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसे गवर्नमेंट नहीं कर सकते। कोई ऑफिसर ऑनेस्ट रहेगा ही नहीं इस देश में। मैं कसम खाता हूं, प्लीज आई बेग यू, गेट योर गाइज टू गो स्लो ऑन हिम। मैं कसम खाता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई कोशिश नहीं की आपके ईमानदार मूवमेंट को खराब करने की। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए, अपने लोगों को बोलिए थोड़े आराम से डील करें उससे। ये मिस्टर शाहरुख खान लिख रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं, यही नहीं रुके हैं शाहरुख खान। ये कहा जा रहा है ये चैट लीक हो गया, अभी लीक हुआ है, ये कोर्ट में है, ये सब मुझे नहीं मालूम। मेरे सामने जो चैट है मैं वो चैट को एनालाइज कर रहा हूं और मुझे ये लगता है एक ईमानदार अफसर को परेशान किया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा का सारी कहानी झूठी है, कोई एक्सटॉर्शन नहीं। किस लिए सीबीआई केस कर रही है, किस लिए एसआईटी ने केस किया है समीर वानखेड़े के खिलाफ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर शाहरुख खान लिखते हैं, प्लीज टेल देम टू गो इजी मैन। अपने ऑफिसर्स को बोलिए मेरे बेटे के साथ शांति से डील करें। इसका मतलब एनसीबी इनके बेटे के साथ शांति से डील नहीं कर रही थी, कड़ी होके डील कर रही थी। दे वर डीलिंग विद हिम एज समबडी हु वाज इन्वॉल्व इन अ सीरियस क्राइम। कहां पे कॉम्प्रोमाइज था? जो शख्स ने पैसा लिया था तो उसको तो स्लो जाना चाहिए था, कहां गए स्लो मिस्टर समीर वानखेड़े? शाहरुख खान कह रहे हैं, प्लीज टेल देम टू गो इजी मैन एंड लेट me get my son home. Please, there is nothing more I can say or do, but I beg you, please. पूरी मीडिया को ये इमोशनल कॉन्शियंट नजर आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि दिस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर समीर वानखेड़े's ऑनेस्टी। ये किसी को दिखाई नहीं दिया। शाहरुख खान के इमोशन सबको नजर आ रहे थे। क्यों? बिकॉज ही इज द सुपरस्टार, ही इज द सुपरस्टार, He's a big actor। तो उनका इमोशन मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया में सर्टेन लोगों को और न्यूज चैनल्स में नजर आया, लेकिन ये इस कहानी समझ में नहीं आई जो असली कहानी थी, दैट देयर वाज एन ऑफिसर हु वाज डूइंग हिज जॉब ऑनेस्टली, और यहां पर उस ऑफिसर को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अगर शाहरुख खान का चैट ना हो तो अब कहा जा रहा है
कुछ फ्रेंड्स आ गए, शाहरुख खान कह रहे हैं ये चैट ही झूठा है, ये चैट ही झूठा है। तो अब ये समीर वानखेड़े को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये चैट सच्चा है, ये झूठा नहीं है। एक कहानी बनाओ, वो फेल हो जाए तो दूसरी कहानी बनाओ। मिस्टर पूजा डरलानी खुद जाके मिली थी या इन्होंने मिलवाया था, बात क्या हो रही थी किसी को नहीं पता, लेकिन बोला क्या, एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन का गेम फेल हो रहा है, वो तो मैंने पहले ही बताया था ना कि वो जो विटनेस है, इसको मैं बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, प्रभाकर सेल, उसकी कहानी जो मैंने वीडियो में डाली है आप उसको देखिए, उसी से पता चलता है कि ये पूरा एक्सटॉर्शन की जो कहानी है कहीं सुनी है। लेकिन अब तो शाहरुख खान के इस मैसेज के बाद, व्हाट्सएप चैट के बाद, इसके भी शक नहीं है, इस प्रभाकर सेल की भी जरूरत नहीं है, इसके स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, उसको एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको जरूर सुनिए आप लोग कि किस तरह से विटनेस मैनिपुलेट किए जाते हैं इस देश में, ऑनेस्ट ऑफिसर को परेशान करने के लिए क्या कुछ किया जाता है। शाहरुख खान का पूरा टेक्स्ट मैसेज यही बताता है, आगे भी है, सुनते जाइए। यू हैव नोटिस माई बिहेवियर थ्रू ऑल दिस। ये शाहरुख खान समीर वानखेड़े को लिख रहे हैं, समीर वानखेड़े कोई जवाब नहीं दे रहे, शाहरुख खान लिखे चले जा रहे हैं। जाहिर है शाहरुख खान परेशान थे। मिस्टर शाहरुख खान वॉज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट हिज सन आउट, यहां तक सब जस्टिफाइड है। लेकिन इस पूरे चैट में कहीं एक भी जगह इंडिकेशन नहीं है दैट मिस्टर समीर वानखेड़े कॉम्प्रोमाइज हिज पोजीशन एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। कैसे मान ले हम कि मिस्टर समीर वानखेड़े इज अ करप्ट ऑफिसर? किस बेसिस पे? वो प्रभाकर सेल के स्टेटमेंट के बेसिस पे, जो जिंदा नहीं है, जो 22 दिन तक चुप रहा और आया तो क्या बोला, उसने सुना है। और अब मिस्टर शाहरुख खान कह रहे हैं नो, मुझे पता है आप ऑनेस्ट ऑफिसर हो, मैं आपके ऑनेस्टी को दाद देता हूं, आई सैल्यूट योर ऑनेस्टी, मैं आपके किसी भी ऑनेस्ट काम में दखल नहीं दे रहा हूं। एंड इफ मिस्टर Samir Wankhede is a corrupt officer, then prove it, because circumstances are not indicating, facts in front of us are not indicating that he's a dishonest officer. It's clear that the entire story has been made to spoil the image of Mr. Samir Wankhede and NCB. And unfortunately, NCB became a party to it because of certain reasons. अब वो reasons क्या थे ये कोई नहीं जानता, लेकिन फैक्ट ये है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर बदनाम कर दिया गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, अभी आप और भी कुछ सुनेंगे और हम वो लोग जो कहते हैं उनसे अलग आपको वो चीज बताएंगे जो हमको लगता है कि शायद हो सकता है। जैसे यहां पर इमोशनल कार्ड, शाहरुख खान का इमोशन स्टोरी नहीं है, स्टोरी ये है कि मिस्टर समीर वानखेड़े इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, क्योंकि एलिगेशन तो उन्हीं के अगेंस्ट में लगा है, एफआईआर उन्हीं के अगेंस्ट में फाइल हुआ है। मिस्टर समीर वानखेड़े इज नॉट विलेन, ही इज अ विक्टिम। मिस्टर शाहरुख खान इज नॉट अ विक्टिम, हिज सन वाज कॉट विथ ड्रग्स। अपने बेटे को समझाना चाहिए था बनिस्पत इसके कि आप समीर वानखेड़े को करप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन नहीं किया तो आज कर रहे हैं, आज पूरा सिस्टम उनके खिलाफ लगा हुआ है। व्हाई? थिंक अबाउट इट एंड व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डू गिव योर comments and also tell me what do you think about Mr. Samir Wankhede. क्या इसके बाद कोई शक बचता है that he is an honest officer, or you still think there is a scope that Mr. Samir Wankhede can still be declared as a dishonest officer?